माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जो आप लोगों के आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और लेकिन हेल्पफुल तो तभी होंगे ना जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ओके, और आप रेगुलर वीडियो को देखिए और बिना स्किप किए देखिए, और मेरी जो लॉन्ग वीडियोज हैं उनके देखिए। उसमें क्या किया है मैंने, डेफिनेशन एज पर द डेफिनेशन, एज पर द फॉर्मूला, सभी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और ग्राफ बना करके फिगर से अच्छी तरह से, जिससे आपकी समझ में आ जाए। इस तरह के कंसेप्ट मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। लेकिन वीडियो देखिए रेगुलरली, देन यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। डोंट वरी, घबराना नहीं है एग्जामिनेशन से, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग निकाले, मैक्सिमम मिनिमम। और क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, क्लास 12 की कौन सी एक्सरसाइज है, 6.5, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग निकालते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमा। देखिए लोकल, इसमें लोकल दिया हुआ होगा हर जगह, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में भी। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, लोकल क्यों यूज करते हैं, अधिकतर ध्यान नहीं देते, समझ में नहीं आता ये लोकल। लोकल मतलब होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है जैसे आपने सपोज इंटरवल ले लिया, उस पर्टिकुलर इंटरवल में ही आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जिसको बोलते हैं लोकल। का मतलब होता है रिलेटिव, ठीक है ना। रिलेटिव वर्ड जरूर याद रखना, लोकल लिखिए या फिर रिलेटिव वर्ड लिखिए। मेरे ख्याल से रिलेटिव वर्ड ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मैं जो समझाता हूं ना, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, आपकी समझ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आना चाहिए। हर तरह का प्रयास करता हूं जिससे आपका जो मैथमेटिक्स है, it will become very very simple and very very easy, my dear student. Okay, let me start the solution of the question. You must have to concentrate over here, and that is question number fx is equal to x square. My dear student, it is clear from the question that it is the upward parabola. That is why I have drawn the figure of the upward parabola. Okay, my dear student, fx, what is the meaning of fx? Means y. Okay, y is equal to x square, that is why it is the upward parabola and its vertex will be at origin. Why it will be at origin? Because if you will put x is equal to 0, then fx or y will also be equal to 0. Like that also you can do. Fx means y. If x is equal to 0, y will also be 0. That is why its vertex will be at origin. Okay, let me start the solution by using, because I told you I have discussed the 3 methods: without derivative test, first derivative test, as well as second derivative test. Okay, let me solve this question by using the second derivative test. Okay, let us start the solution. My dear student, देखिए fx that is equal to, fx will be equal to x square, and differentiate with respect to x. Okay, that will be f dash x. And what is the differentiation of x square? That is 2x. My dear student, it will be 2x. Once again differentiate. With respect to x. My dear student, that will be f double dash x will be equal to 2. Okay, for turning point, what do you mean by turning point? Turning point means whenever, suppose you see the graph is decreasing. Okay, graph decreasing means f dash x that should be less than 0. Okay, and you see f dash x, the f dash x that will be less than 0. Okay, and increasing means f dash x that will be positive. Here f dash x that is decreasing, and here f dash x that is increasing. Okay, and that graph of x square passes through origin. Okay, its vertex will be 0 0. Okay, passing through origin, that is why it is a turning point, and it is a turning point and it is the point of minima or maxima. Let me take, although it is clear from the graph, you will have to see, my dear student, because it is decreasing, and after decreasing, after reaching at the point origin, it start to increase. Okay, you must have to see, and you must have to clear the point. Okay, that is why
f dash x, that is changing from negative to positive. From what point? From the point 0, 0, origin. Okay, that is why it is the turning point, and I do hope that this is the minimum value. Okay, and what will be the maximum value? My dear student, it is very difficult to find out its maximum value, because you can increase the graph in both the sides. Okay, up to what? Infinite. That also I will tell you. Okay, my dear student, that is why you see I told you 0, it is a point of minima. Okay, and 0 will be the value at that point, at the point minima. Okay, let me start by the second derivative test. Okay, you see, my dear student, let me see for maxima and minima. For maxima and minima, f dash x, that will be equal to 0. Okay, and my dear student, you will have to see if it is 0, f dash x, you see 2x, that is also equal to 0, and x will be equal to, my dear student, you see x will be equal to 0. Okay, but at this point, my dear student, at x equal to 0, you will see f double dash 0 will be equal to f double dash, you see, my dear student, this is this one, that will be 2, and that will be greater than 0, and if it is greater than 0, then it is the point of minima. Okay, my dear student, you will have to see, therefore, so x is equal to 0 is a point of minima. And what will be the minimum value, my dear student? Minimum value you will have to see. Minimum value at x is equal to 0. At x is equal to 0, what will be the minimum value? You will have to see, my dear student, f0. f0 will be equal to 0. 0 is the minimum value. And I told you by the graph also, by the diagram, you see, 0 is the minimum value. Okay, and maximum value we can't find out. Why we cannot find out the maximum value? That I will explain. Okay, my dear student, if x tends to infinite for all x belongs to R. If x tends to infinite, my dear student, you will have to see f x, that is also tends to infinite. For any real value, my dear student, its value will be up to infinite. And what will, do you see? Here, if here you will write any value, any real value, it will also be the real value. Okay? If you will write here infinite, that will also be infinite. Okay? And we don't know what will be the maximum value. And minimum value will be 0. And 0 is the point of minima. My dear student, try to understand. I told you in detail, in a very simplest way, in a very simple method, so that you will understand my concept and each and every point of the solution of the question. Let me take the second part of this question. Okay, student, let us start the solution of the second part of question number 3. चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, you will have to differentiate it with respect to x. Differentiate with respect to x. Okay, my dear student, देखिए, you will have to see 3x square or minus 3. Once again you will have to differentiate. Once again differentiate with respect to x. Okay, my dear student, let me know that you see differentiation of x square, that is 2x, my dear student. 2 into 3, that will be 6x, or it will be 0. The differentiation of 3 will be equal to 0. My dear student, you will see for maxima and minima, यानी कि for turning point, maxima minima या फिर stationary point. Okay, for maxima and minima, g dash x, that will be 0. Okay, and you will have to see g dash x, यानी कि 3x square minus 3. Okay, it will be equal to 0. 3 is common. X square minus 1 will be equal to 0, or my dear student, x will be equal to plus minus 1. There will be two values of x. एक सबसे पहले फर्स्ट केस at x is equal to 1, पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं. ठीक है, यहां पे देखिए, you will have to see double dash 1 will be equal to 6 into 1
यानी कि 6 यानी कि ग्रेटर देन 0। माय डियर स्टूडेंट, x is equal to 1, it is the point of minima as per the definition and as per the formula second derivative test। वो तो देखिए याद होना चाहिए, और यदि याद नहीं है तो मेरी लॉन्ग वीडियो देखे ना, एक एक चीज मैंने अच्छी तरह से डिटेल में बताई है, जिससे आपकी तुरंत समझ में आ जाएगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इजिली। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब क्या होगा, देखिए यहां पे क्या आ गया, g'1 दैट इज ग्रेटर देन 0। सो x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल देते हैं। मिनिमम वैल्यू देखिए इसी पर वैल्यू निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा मिनिमम वैल्यू, देखिए इस फंक्शन में g1 विल बी इक्वल टू, यू विल हैव टू सी 1 टू द पावर 3 और माइनस 3 इंटू 1। हाउ मच इट विल बी, देखो 1 माइनस 3 विल बी इक्वल टू माइनस 2। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। Okay, this will be the minimum value. X is equal to 1 is a point of minimum and minimum value will be -2. Okay, तो एक वैल्यू माइनस होगी, देख लीजिए, और यू कैन से दैट x is equal to -1 और 1। ठीक है, चलिए अब -1 पर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो, देखिए माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी -1 विल बी इक्वल टू 6 और -1 दैट विल बी इक्वल टू -6, और व्हाट डज इट मीन, दैट इज लेस देन 0। That is why, my dear student, x is equal to -1, it is a point of minima. So x is equal to -1 is a point of minima. Point of minima. Minimum value क्या होगी my dear student, minimum value देख लीजिए। So at x is equal to -1, देखिए यहां पर g1 कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर -1 टू द पावर 3 g-1। ओके, बिकॉज -1 पर चेक कर रहे हैं हम लोग। यू विल हैव टू सी -1 टू द पावर 3 और -3 और -1। ठीक है, देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज -1 और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव +3, इट विल बी इक्वल टू 2। द मिनिमम वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, देखिए it is the point of maximum, and maximum value is equal to 2. The maximum value will be value at x is equal to -1 is, that is 2. This is the maximum value. X is equal to -1, it is the point of maxima, and the maximum value will be 2. चलिए my dear student, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं इसी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। अब इसमें भी क्या है, हम लोग वी विल फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि टर्निंग पॉइंट, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना है, इसमें x जो है ना, जहां पर जो थीटा की वैल्यू है, दैट इज इन बिटवीन 0 टू π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये याद रखना, 0 टू π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, h dash x will be equal to my dear student sin x का डिफरेंशिएशन, that is cos x, और cos x का माइनस sin x। ठीक है, चलिए एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x once again। कितना हो जाएगा, देखिए h डबल डैश x विल बी इक्वल टू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और इसका cos x, लेकिन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा f डैश x विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने कई बार डिस्कस कर चुका मैं इस चीज को, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा फॉर टर्निंग पॉइंट, my dear student, f dash that will be h dash x will be equal to how much, 0। ओके, क्या है देख लीजिए my dear student, implies that cos x और minus sin x that is also equal to 0।
ओके, साइन एक्स आई विल टेक फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, यानी कि कोस एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स। और क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, दोनों साइड में कोस एक्स से डिवाइड कर देता हूं। देखिए टेन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, टेन एक्स विल बी इक्वल टू 1, यानी कि टेन पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है ना, 1045 की वैल्यू 1 होती है ना। तो हमारे स्टूडेंट यू विल हैव टू सी एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमारे पास पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया हमारे स्टूडेंट, ठीक है। एट दिस पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्या करना है हमको, एच डबल डैश की वैल्यू निकाल दो सबसे पहले। एच डबल डैश यानी कि पाई बाई 4, ये जरूर याद रखना है, एक्स के स्थान पे आपको पाई बाई 4 रखना है, ठीक है। देखिए दोनों नेगेटिव हैं, क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 4 और माइनस कोस पाई बाई 4। और देखिए साइन पाई बाई 4 भी √2 होता है और कोस पाई बाई 4 भी √2 होता है, यानी कि साइन 45 और कोस 45, ठीक है। और माय स्टूडेंट इसका एलसीएम कितना हो गया, √2 और -1 और -1, दैट विल बी -2 अपॉन √2, यानी कि -√2 आ गया माय स्टूडेंट। और -√2 क्या होता है, दैट इज लेस देन 0, यानी कि मेरे पास देखिए माय स्टूडेंट ये आ गया डबल डैश, यानी कि पाई बाई 4 इट इज लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब पता है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा का पॉइंट आ गया माय स्टूडेंट। लेट सो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा का पॉइंट आ गया माय स्टूडेंट, बिकॉज इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, ओके, दैट इज वाई। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं माय स्टूडेंट। देखिए h मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 कितनी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, यू विल हैव टू सी, यानी कि h पाई बाई 4। देखिए माय स्टूडेंट साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, यानी कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। देखिए हमने, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो कितनी हो जाएगी, देखो यहां पे 1/√2 और प्लस 1/√2, एलसीएम कितना आ गया, √2 आ गया, देखो। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आ गया 1 + 1, यानी कि 2/√2 और इज इक्वल टू √2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई ना, √2 आ गई। x इज इक्वल टू पाई बाई 4, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, √2 माय डियर स्टूडेंट, ओके। चलिए इसी का एक पार्ट और देखते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, f डैश x विल बी इक्वल टू cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, यानी कि पॉजिटिव sin x हो जाएगा, ठीक है। यू विल हैव टू सी, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर इट। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट वंस अगेन, विद रेस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा, देखिए f डबल डैश x और विल बी इक्वल टू cos x का माइनस sin x और sin x का cos x, ओके। बट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर टर्निंग पॉइंट और फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, देखिए दोनों ऑप्शन बता दिए मैंने, आइदर यू राइट टर्निंग पॉइंट और यू राइट मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी सी, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा will be equal to 0, okay, then cos x plus sin x will be equal to 0। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, cos x will be equal to माइनस sin x, और देखिए दोनों साइड में cos x से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, tan x will be equal to -1, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, -1 जो होता है ना, tan जो नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। देखो दोनों वैल्यू बताऊंगा, देखिए एक तो ये हो सकता है tan पाई माइनस पाई बाई 4, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, यानी कि tan 180 माइनस थीटा, दैट विल बी
टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, यानी कि माइनस 1045। 1045 कितना होता है? 1040 होता है 1, ठीक है, तो माइनस 1 आ गया, यहां भी आ जाएगा और एक यहां पे हो जाएगा, देखो 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। दोनों चीजें याद रखना, बहुत सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 360 में से 45 डिग्री माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा ना, और उसमें 10 नेगेटिव होता है। देखिए 10 2 पाई माइनस थीटा, दैट विल बी माइनस 10 थीटा, यानी कि माइनस 10 45 डिग्री, और 45 डिग्री 10 45 कितना होता है 1, तो माइनस 1। देखो इसमें भी माइनस 1 आएगा और इसमें भी माइनस 1 आएगा, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बता दीजिए, देखिए 10x सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, ये लेता हूं, इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी 3 पाई बाई 4। एक तो ये आ गया, और 10x किसके इक्वल आ जाएगा, 10x विल बी इक्वल टू, यहां पे देखो 8 पाई माइनस पाई, दैट विल बी 10 7 पाई बाई 4। तो x की वैल्यू 2 आ गई माय डियर स्टूडेंट, एक तो आ गई 3 पाई बाई 4, और x विल बी इक्वल टू, देखो यहां पे आ जाएगी 7 पाई बाई 4। स्मार्ट सॉल्यूशन, एक एक पॉइंट बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। ओके, ये इस तरह से कहीं भी नहीं मिलेगा, इस तरह से सॉल्यूशन आपको, तो इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट वाली आ गई और एक फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। दोनों पॉइंट पे हम चेक करेंगे वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए सबसे पहले ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, ठीक है। 3 पाई बाई 4 में क्या करेंगे, ये देखो यहां पे f डबल डैश 3 पाई बाई 4, हमें तो देखना ना, ये सबसे पहले पॉइंट चेक करेंगे ना वेदर इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। साइन 3 पाई बाई 4 और प्लस कोस 3 पाई बाई 4। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये मैंने लिख दिया यहां पर, ये वैल्यू जो है ना, इसका निकालने का भी तरीका होता है, ठीक है। यहां पे देखो साइन माइनस साइन, क्या 3 पाई बाई 4 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहां लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 4, जो अभी लिखा हुआ मैंने, देखो यहां पर लिखा हुआ था ना। और माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू देखिए, साइन देखो यहीं पर माइनस साइन, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, देखिए माय डियर स्टूडेंट, और इसको भी लिख लीजिए प्लस कोस 3 प्लस कोस, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 4। देखो दोनों को लिख दिया मैंने सेम थिंग, 3 पाई बाई 4 को मैंने रिड्यूस कर दिया। माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कितना होगा साइन पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4, और यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, कोस भी जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि कोस पाई बाई 4। इट विल बी इक्वल टू माइनस 1/√2, और ये भी माइनस 1/√2। देख लीजिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, √2 एलसीएम ले लीजिए और -2, यानी कि रूट -2 आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए -√2 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू, देखिए इसकी, देखिए यहां पर देखिए f डबल डैश किस पर, 3 पाई बाई 4 पर, ठीक है। इट इज लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 होगा तो देखिए ये पॉइंट मैक्सिमा का, 3 पाई बाई 4 इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो माय डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट अभी मैं इसको हटा देता हूं, फिर नेक्स्ट इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू, ओके, मैक्सिमम वैल्यू यहां से निकालेंगे, यानी कि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, ठीक है। f 3 पाई बाई 4, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं साइन पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4 और कोस 3 पाई बाई 4, ठीक है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, कोस सेम थिंग उसी तरह से लिखूंगा, यानी कि साइन पाई माइनस पाई बाई 4, देखो इसको सेम थिंग, और ये भी वही माइनस कोस, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 4। ये वैल्यू बता रहा हूं इजीएस्ट वे में कैसे निकाल सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ देखिए इसको मैंने यहां पे चेंज कर दिया, देखो
ये नेगेटिव है ना, इसको चेंज कर दिया इसमें, इसको चेंज कर दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट देखिए एलसीएम लोगे ना फिर वही 3π/4 आ जाएगा, यानी कि इसको रिड्यूस कर दिया। और ये क्या आ गया देखो -20 आ गया sin π/4, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा cos π/4। तो कितना आ गया 1/√2 और प्लस 1/√2, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया √2 और 1 + 1 -20 देखिए 2/√2 इट विल बी इक्वल टू √2 आ गई वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई √2। देखिए मैक्सिमम वैल्यू एट कितने पर x = 3π/4 इज √2। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई √2 आ गई, ठीक है। अब किस पे देखते हैं 7π/4 पर चेक थी पॉजिटिव और यहां पे 7, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा -sin 2π - π/4। देखिए इसको रिड्यूस कर दिया मैंने 7π/4 को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी एक नंबर 2 नंबर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिए वहां भी काम आएगा, ये यहां पे आएगा cos 2π - π/4, ओके। माय डियर स्टूडेंट 2π देखिए साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है, तो साइन 2π - 4 माइनस और माइनस साइन π/4 आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। और यहां पे कितना आ जाएगा cos π/4 आ जाएगा। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव माय डियर स्टूडेंट, साइन π/4 कितना हो गया दैट इज 1/√2। यहां भी 1/√2। एलसीएम कितना आ गया √2 और 1 + 1 2 आ गया, दैट विल बी √2 आ गई इसकी वैल्यू। और दैट इज ग्रेटर देन माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, f" इनके 7π/4 इट इज ग्रेटर देन 0। दैट इज वाई x = 7π/4 इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो x = 7π/4 is a point of minima, point of minima, it is a point of minima, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं इस पर, ठीक है। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू सेकंड केस पर। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं, दैट विल बी, यही फंक्शन है ना, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। देखिए जरा सा चेंज करूंगा, इसको मैंने चेंज कर लिया, इसी यही सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, देखो, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट यहां पे क्या करोगे, देखो यहां पर देखो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कोस तो पॉजिटिव होता है ना, देखो ऑलरेडी नेगेटिव साइन तो हमारे पास है, और ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव ऑलरेडी है ही। माय डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया, देखो बिल्कुल आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये भी नेगेटिव। जब ये नेगेटिव आ गया तो क्या आ गया बता दीजिए जरा, दैट इज लेस देन 0। देखिए उसी कैलकुलेशन से मैंने आपको बता रहा हूं, उसी कैलकुलेशन से सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी निकाल दिया, देखो मैक्सिमम, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर वैल्यू मैंने रख दी। अब इसको चेंज कर देता हूं, साइन 2π - π/4, ठीक है। देखिए उसको चेंज कर दिया मैंने 7π/4 को, जो पहले किया था उसी का रिवर्स गेयर लगा दिया ना, और यहां पे क्या होगा प्लस कोस, यानी कि 2π - π/4। अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या होगा माइनस साइन π/4, साइन π/4, ओके। और यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे ये तो पॉजिटिव होता है कोस, ये भी हो जाएगा कोस π/4, ओके। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव और साइन π/4 दैट इज 1/√2, और यहां पर भी 1/√2,
ओके, √2 एलसीएम आ गया 2 और दैट विल बी वैल्यू √2 आ गई। देखो √2 एलसीएम 1 + 1 2 आ गया, ठीक है, 2 को √2 से डिवाइड करोगे √2 आ गई। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या आ गया, f डबल डैश क्या 7 π/4, ठीक है, इट इज व्हाट ग्रेटर देन 0। देखिए ग्रेटर देन 0 आ गया, ध्यान दीजिए। सो देखिए क्या आ गया, x = 7 π/4 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा, इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं अभी, मिनिमम वैल्यू, ओके, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम वैल्यू विल बी, देखिए यहां से निकालेंगे, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहीं से निकल जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव है, देखिए ये नेगेटिव है, ओके। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिए आप लोग, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, दोनों नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू -2, ठीक है, और ये हो गई एट व्हाट दिस पॉइंट इज, क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, मिनिमम वैल्यू इज -√2 आ गई ना मिनिमम वैल्यू। और माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना अच्छा स्मार्ट सॉल्यूशन। चलिए अब इसका 5th पार्ट भी लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए f' विल बी इक्वल टू 3x² और -12x और +9। ध्यान दीजिए इसका डिफरेंशिएशन है x⁻³ का डिफरेंशिएशन 3x², x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 12, 9x का डिफरेंशिएशन 9 और 15 का क्या हो गया 0। माय डियर स्टूडेंट 9x का डिफरेंशिएशन 9 यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। चलिए अब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं, डिफरेंशिएट वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, वंस अगेन। ओके, डबल डैश x, देखिए x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x ना, तो 2 × 3 6x, 12 का x का डिफरेंशिएशन 1 यानी कि -12, माय डियर स्टूडेंट 6 कॉमन आ गया x - 2, देखिए सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल दिया, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, कितना हो जाएगा f' विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, f' विल बी इक्वल टू 0 मतलब देखिए यहां पर 3x² -12x और +9 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए यहां पर 3 कॉमन है, सबसे पहले 3 को बाहर ले लेते हैं, x² - 4x + 3, बस it is very easy to find out the factorization by splitting the middle term। देखिए यहाँ पे क्या है -4 है और 3 इसका कोफिशिएंट क्या है 1 × 3 3, यानी कि आपको फैक्टराइजेशन इसको मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है जिसका सम तो कितना होना चाहिए -4, मल्टीप्लीकेशन कितना 3, देखिए x² - 3x और -x और +3, कुछ नहीं करना, देखिए 3 कितना हो जाएगा x कॉमन ले लीजिए x -3 और -1 कॉमन ले लीजिए तो x -3, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट 3x - 1 और x -3 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो वैल्यू आ गई x की, या तो ये ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा या ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए x - 1 इज इक्वल टू 0 और x -3 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1 और 3, दो वैल्यू आ गई, दोनों पे चेक करेंगे हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमा। चलिए इफ x इज इक्वल टू 1 पर ले लेते हैं हम लोग,
देखिए ये लेंगे, सबसे पहले देखो इसको चेक करेंगे माय स्टूडेंट। देखिए एफ डबल डैश यानी कि 1 पर कितना है 6, यहां पे देख लीजिए 1 माइनस 2 दैट विल बी माइनस 6 यानी कि लेस देन 0। ओके माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्या आ गया ये लेस देन 0 आ जाएगी यानी कि -6। देख लीजिए 1 माइनस 2 यानी कि -1, -1 इंटू 6 -6 आ गई लेस देन 0, यानी कि ये पॉइंट क्या आ गया x इज इक्वल टू 1, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम वैल्यू माय डियर स्टूडेंट यहां से निकालेंगे यानी कि f1 विल बी इक्वल टू 1 टू द पावर 3। ठीक है, -6 और 1 स्क्वायर, चलिए यहां पर +9 और 1 और +15 कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे 1 और -6 और +9 और +15। ठीक है, जो पॉजिटिव उनको ऐड कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए 10 और 25 हो गया, 25 और -6 दैट विल बी 19। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई माय डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू इज 19। ओके, अब किस पर चेक करेंगे, देखिए हैंस मैक्सिमम वैल्यू इज 19। ठीक है, और हम क्या निकालेंगे आप टॉप मिनिमा, x इज इक्वल टू 3, इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू देखो मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 यानी कि f3 विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 3 और -6 यानी कि 3 स्क्वायर और +9 इंटू 3 और +15। ऑलराइट, ठीक है मैडम, 3 टू द पावर 3 दैट इज 27 और माइनस देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 और 9 6 जा 54 माइनस स्टूडेंट। ठीक है, और +27 देख लीजिए यहां पर भी, ये भी, और यहां पर +15। अब देखिए ये और ये तो कैंसिल ही हो गया माइनस स्टूडेंट, 15 आ गई वैल्यू, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, किस पर, देखिए माइनस स्टूडेंट एट x इज इक्वल टू 3 द मिनिमम वैल्यू इज is 15। स्मार्ट सॉल्यूशन इस जादू की छड़ी से निकलने वाले स्मार्ट सॉल्यूशन। चलिए अब 6th पार्ट लेते हैं हमारे। यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एज पर द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी हुई है, x इज ग्रेटर देन 0। चलिए इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या है gx g डैश x। देखिए x का तो 1 होता है यानी कि 1/2 आ गया सपोज। ठीक है, और प्लस माय डियर स्टूडेंट 2 और x टू द पावर -1 है। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए मैं इसको पहले सबसे पहले लिख लेता हूं ऐसे ही, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। x/2 और प्लस 2x टू द पावर -1, इसका भी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया, x टू द पावर -1 कर दिया, और अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। x का तो 1 हो गया ना, 1/2 हो गया। अब यहां पे देखो 2 x टू द पावर -1 का फॉर्मूला ये अप्लाई कर देना है, x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n-1। ठीक है, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, -1 और x टू द पावर -1 और -1, ये आ गया। देखिए तो 1/2, देखो नेगेटिव साइन आ गया ना, माइनस कितना आ गया 2/x² आ गया। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। अब इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 1/2, देखिए 2 और x टू द पावर -2 लिख सकते हैं इसको। देखिए इसलिए बता रहा हूं जिससे आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं ना इसको, डिफरेंशिएट वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर से इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि g डबल डैश x कितना आ गया बताइए। देखो इसका तो 0 आ गया, फिर -2
और माइनस स्टूडेंट इसका फिर से वही सेम थिंग, एक्स टू दी पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 और एक्स टू दी पावर -3 एज पर द फॉर्मूला। कितना आ गया, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 4/x टू दी पावर 3 आ गया, डबल डैश। ठीक है, लेकिन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना इंप्लाइज दैट, क्या चीज, देखो यहां पर 1/2 माइनस 2/x² विल बी इक्वल टू 0। ये भी 0 के इक्वल आ गया, ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो कितना आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आ गया 2x²। x² को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर कर दो, बस कुछ नहीं करना, -4 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि x² - 4 विल बी इक्वल टू 0। और देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, +-2 आ गई, आ जाएगी ना, देखो लीजिए x² विल बी इक्वल टू 4 और 4 के स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, बस स्क्वायर रूट ऑफ 4 +-2 आ गई। लेकिन कंडीशन देख लीजिए माय स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन 0, बट गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 2 लेंगे, -2 तो लेंगे नहीं, एंड x इज इक्वल टू -2 रिजेक्टेड एज पर दिस वन, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, अंडरस्टैंड। चलिए माय स्टूडेंट, ये वैल्यू लेंगे केवल हम लोग एट x इज इक्वल टू 2 पर। अब देखिए डबल डैश निकाल देते हैं, देखिए यहां पर 2, ठीक है, ध्यान देखो 4/2 टू दी पावर 3, माय स्टूडेंट देखिए 4/8 यानी कि 1/2, देख लीजिए भाई, 2 टू द पावर 3 तो 8 होता है ना, कैंसिल कर दीजिए, 2 आ गया। और माय स्टूडेंट दैट इज ग्रेटर देन 0, देखो यहां पे देखिए, यू विल हैव टू सी G'2 दैट इज ग्रेटर देन 0, और क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2, इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी माय स्टूडेंट, अब मिनिमम वैल्यू यहां से निकाल देते हैं, द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, देखिए माय स्टूडेंट, देखिए 2 विल बी इक्वल टू, देखो 2/2 और +2/2 विल बी इक्वल टू 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2। मिनिमम वैल्यू भी 2 आ गई हमारे पास में, ठीक है, द मिनिमम वैल्यू इज 2। at x is equal to 2. 2 is a point of minima and minimum value is 2। चलिए माय स्टूडेंट, 7th पार्ट लेते हैं इसी क्वेश्चन का। इसमें जनरली गलत कर देते हैं बच्चे। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² + 2 टू दी पावर -1 भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। यानी कि इसकी पावर 1 है ना, न्यूमरेटर में ले लिया इसको हमने, ठीक है, पावर तो चेंज हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा, देखो यहां पे -1 हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, d/dx यानी कि x टू दी पावर n, किसके इक्वल हो जाएगा, n x टू दी पावर n-1, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पे पावर देखिए n के स्थान पे हम लोगों ने 1 ले लिया ना, तो क्या करेंगे, x² + 2 टू दी पावर -1 और -1 -2 हो गया, इसका दोबारा से करेंगे फिर 2x हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, देखो -2x, और ये पावर 2 है ना, ये तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, x² + 2 यानी कि होल स्क्वायर आ गया। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, नहीं तो टिपिकल बन जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे हम, देखिए ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए देखिए, डबल डैश x कितना हो जाएगा, अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, देखिए कोसेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। देखो
एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर टू द पावर 2 कर दीजिए। बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर यानी कि -2 आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को अब एज इट इज लिख लीजिए। देखिए न्यूमरेटर तो 2x है ना, और डिफरेंशिएशन किसका? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी कि देखिए यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2 - 1, और इसका दोबारा से कर दीजिए यानी कि 2x आ गया। देखिए ये आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब देखो इसमें ना यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो एक इसके पास है, इसको मैं बाहर कर देता हूं। देखो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, और देखिए 2 भी कॉमन है इसमें। सिंपलेस्ट बनाने के लिए देखो 2 एक बाहर कर दिया मैंने, और एक है तो एक हमने एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने एक कॉमन ले लिया, तो एक बचेगा। देखो यहां पर कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 बच गया ना, नेगेटिव। देखो माइनस है ना यहाँ पे एक मैंने बाहर कर 2 और ये बाहर कर दिया, एक बच गया, तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया माइनस। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ओके, अब मैंने क्या किया? एक तो 2 ये तो मैंने बाहर कर दिया, एक 2 भी बाहर कर दिया, बचा कितना? 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर बच गया। देखिए ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर टू दी पावर 2, यानी कि 4 कर दूं, यहीं पर पावर 4 कर देता हूं। देखो पावर 4 कर दिया मैंने, लीजिए। ऑलराइट, और एक पावर यहां से कैंसिल भी हो गई, तो कितना आ गया माइनस 1? देखिए आ गया ट्वाइस। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर और -2 देखो, और प्लस 4 एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 3। ऑलराइट, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर, ये 3 एक्स स्क्वायर आ गया, और ये आ गई हमारे पास जी डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? देखो यहाँ पर 2 तो बाहर में है ही, इसकी वैल्यू देखो 3 एक्स स्क्वायर और प्लस -2 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, देख लीजिए 3 एक्स स्क्वायर और -2, और एक तो इसमें से हमने माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट जी डबल डैश एक्स की। जी डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, क्या आ जाएगा बता दीजिए? ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, -2x अपॉन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -2x विल बी इक्वल टू 0, और इंप्लाइज दैट यानी कि x की वैल्यू 0 आ गई माय डियर स्टूडेंट। इट इज अब देखते हैं इसमें x की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास में, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, डबल डैश की वैल्यू निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट, जी डबल डैश 0 कितनी हो जाएगी? देखो ट्वाइस, और ये हो गया 3, और यहां पर तो 0 स्क्वायर हो गया, और -2। ऑलराइट, डिवाइडेड बाई देखो यहां पर भी 0 स्क्वायर मींस 0, 2 टू दी पावर 3 कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? देखो ये तो 0 हो गया, ये -4 आ गया, -4 अपॉन हाउ मच? 8 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, और दैट इज लेस देन 0। डबल डैश 0 it is less than 0, x is equal to 0 is a point of maximum, और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं अभी। देखो क्या होगी मैक्सिमम, द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? देखिए 0 विल बी इक्वल टू, देखो यहां पर 1/0 प्लस 2 यानी कि 1/2, 1/2 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इज 1/2, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज 1/2। मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आ गई माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एकदम, लेकिन मन लगा करके बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए
इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बताता हूं। देखिए एक ही क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, 8 पार्ट लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। डिफरेंशिएशन में भी किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको तो एज इट इज लिख लीजिए आप, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया ना, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। और 1 माइनस एक्स, ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1 इंटू, अब 1 माइनस एक्स का दोबारा से करेंगे, -1 आ गया, ठीक है। अब इसको एज इट इज लिख लीजिए, प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर हाफ, ठीक है, और यहां पे एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको एज इट इज लिखा, फिर इसका डिफरेंशिएशन। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब देखिए यहां पे नेगेटिव है माय डियर स्टूडेंट, यहां दीजिए, देखिए नेगेटिव एक्स आ गया, ठीक है, माइनस एक्स। और देखो यहां पे 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस हाफ, यहां पे 1/2 है ना, -1, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगी पावर। देखो चलिए इस लाइन को भी मैं पूरा लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, -x/2, और देखिए यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर -हाफ, ठीक है, ये नेगेटिव साइन मैंने यहां ले लिया, और यहां पे क्या आ गया, √1 माइनस एक्स, ठीक है। देखो अब ये डिनोमिनेटर में आ गया x/2, क्योंकि पावर पॉजिटिव है ना, तो √1 माइनस एक्स आ गया, और यहां पर कितना आ गया, देखो 1 माइनस x², ठीक है। अब दोनों एलसीएम ले लीजिए, देखिए 2√1 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो -x आ गया, ठीक है, प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 माइनस एक्स, भाई रूट इंटू, देखो √1 माइनस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स कितना आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया ना। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो कितना आएगा, -x + 2, देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, -2x, और डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2√1 माइनस एक्स। मैंने बताया था ना पहले ही, थोड़ा सा ध्यान देना है। माइनस, देखो ये कितना आ गया, -3x और +2 डिवाइडेड बाई 2√1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, और थोड़ा सा जोर तो पड़ेगा ही। देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब डबल डैश निकालोगे ना, फिर लेंदी पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब डबल डैश निकाल दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, इसको एज इट इज कर दीजिए 1 माइनस एक्स, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3, और इसका तो 0 आ गया। देखिए न्यूमरेटर का 3 करके एक्स का तो 1 हो गया ना, ये आ गया माय स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे, -3x और +2, और क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, देखो 1/2 तो बाहर किया हुआ है ये, और इसका डिफरेंशिएशन बता दो, यानी कि हाफ 1 माइनस एक्स टू द पावर हाफ -1, देखो, और फिर 1 माइनस एक्स का दोबारा से कर दीजिए, यानी कि -1। देखिए माय स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, डिफरेंशिएशन में इसको एज इट इज किया मैंने, न्यूमरेटर को, इसका डिफरेंशिएशन किया है बस, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये पावर हाफ आ जाएगी, यहां पे देख लीजिए, ठीक है ना, नेगेटिव हाफ आएगी, इट विल बी इक्वल टू, देखो यहां पे देखिए माय स्टूडेंट, ये नेगेटिव आ गया, -3√1 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस यहां पे देखो -3x और +2। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, इसीलिए यहां पे भी देखो, ये यहां पे नेगेटिव साइन ले लेता हूं, क्यों, ये नेगेटिव साइन देखो यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, क्योंकि देखिए पावर नेगेटिव आएगी, -1/2, और इसको डिनोमिनेटर में लेंगे तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये नेगेटिव साइन मैंने यहां ले लिया, इसको एज इट इज लिख लिया, और ये आ गया 2√1 माइनस एक्स। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन इसका एलसीएम लेने के लिए एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, 1/2 तो बाहर है ही, लेकिन ये जो स्क्वायर है ना, इसको भी मैं बाहर ले लेता हूं। देखो ये तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आ गई मेरे पास में कितना, ये रूट में है तो रूट से क्या आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया केवल, अंडरस्टैंड। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा बता दीजिए, देखो 1/2, ठीक है, 1 माइनस एक्स, तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, देखो 2 × 3 6 आ जाएगा,
ठीक है, और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 6 यानी कि 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स यानी कि रूट खत्म। ठीक है, ये एलसीएम आ गया और ये कितना आ गया, देखिए नेगेटिव साइन से अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको नेगेटिव साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 3x और यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू सी डिनोमिनेटर में कितना आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 2 रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको तो मैंने पहले ही बाहर लिया हुआ है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब ये लिया मैंने यहां पर, इसका मैंने एलसीएम ले लिया पूरे का, तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब बता दीजिए कितनी आ गई, 1/2 1 माइनस एक्स। देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा, देखो यहां पर, ये तो एज इट इज मैंने लिख लिया, 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, -6 + 6x। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ओके, और ये कितना आ गया, +3x और -2 और डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये f' की वैल्यू है, चूंकि ये हमको चाहिए। f' कितनी है, 2 रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, और ये -3x + 2, चूंकि 4 मैक्सिमम मिनिमा के लिए चाहिए। अब मैं इसको, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ठीक है, यू विल हैव टू सी, तो ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, लेकिन 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, f' दैट विल बी इक्वल टू 0। और f' कितना है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि -3x और +2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आ गया -3x + 2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूं, यानी कि 2/3 आ गई, x इज इक्वल टू 2/3 एट 2/3। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, x इज इक्वल टू 2/3, f" 2/3। ठीक है, अब यहां पर 2/3 रखेंगे हम लोग 3, और यहां पर 2/3 -4 डिवाइडेड बाई, यहां पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 4 1 - 2/3 टू दी पावर हाउ मच, 3/2। और माय डियर स्टूडेंट देखिए 3 से 3 कैंसिल, यानी कि आगे मेरे पास में 2 - 4 डिवाइडेड बाई, देखो यहां पे 4 और कितना आ जाएगा, देखो इसको एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 3 - 2/3 टू दी पावर 3/2। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, देखो -6/4 और रूट में कितना आ गया, देखो यहाँ पे 1/3, देखो यहाँ पे 1/3 आ गया माय डियर स्टूडेंट, 1/3 टू दी पावर 3/2 एंड दैट इज लेस देन 0। 2/3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इट इज ए पॉइंट ऑफ, देखिए इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ गई माय डियर स्टूडेंट, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वैल्यू ऑफ f(x) कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए f यानी कि 2/3 विल बी इक्वल टू, यहां पे देखिए 2/3 और रूट हाउ मच, 1 - 2/3, इट विल बी इक्वल टू, देखो 2/3, एलसीएम ले लीजिए, 3 - 2/3, देखिए 2/3 और रूट 1/3। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गई 1/3 रूट 3, यानी कि वैल्यू आ गई 2/√3/3, रूट 3/√3। तो कितनी आ गई वैल्यू, देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 रूट 3 इंटू रूट 3 और 3 इंटू 3 9, तो ये आ गई, और ये आ गया 2√3, ये आ गई माय डियर स्टूडेंट 2/3। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2√3/9 एट व्हाट पॉइंट, 2/3। और माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन आप लोगों को कहां मिलेंगे, देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन मैंने बताए हैं, लेकिन देखिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन में आप परफेक्ट होने चाहिए, ओके। और इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथ पर ही मिलेंगे, और वो तो तभी मिलेंगे ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और
प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। मेरी वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, आपके फ्रेंड को भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना। और माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से तो यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, you will extract, you will secure the good marks in the forthcoming board examination, CBSE examination. Okay, best of luck.